جب لوگ پلٹ کے آ جاتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر ان کے نام ہیں، اور وہ اس کو بٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر کے اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب کوئی مانے یا نہ مانے، رب تو سب کا اللہ ہی ہے۔ اگر کوئی انکار بھی کرے تو اس کے باوجود اس کا رب کون ہے؟ اس کا رب اللہ ہے۔ تو دنیا کے اوپر کوئی اقرار کرے یا انکار کرے، لیکن نفس الامر میں حقیقت میں اس کا رب اللہ ہی ہے۔ یہ تو حقیقت ہے، یہ تو طے شدہ ہے۔ لیکن جو عقیدہ دنیا پہ رہا ہوگا وہی عقیدہ اس کے لہجے میں آئے گا۔ اگر اس نے عملاً، رویتاً، قولاً، فعلاً اپنے اللہ کو اپنا رب مانا، رب کہتے ہیں کسی چیز کی تربیت اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق کرنے والا رب کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور ہماری ضروریات کا وہ کفیل بھی ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، اور صرف ہمارا رب ہی نہیں ہے، رب العالمین ہے، پورے جہانوں کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ خالق بھی سب کا وہی ہے اور رب بھی سب کا وہی ہے۔ جو اسے مانتا ہے اسے بھی رزق دیتا ہے، جو نہیں مانتا تو اس کے لیے بھی رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بھوک لگتی تو کوئی مہمان ڈھونڈتے تاکہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ کھانا جتنا بھی مرغن اور جتنا بھی جو ہے وہ پرتکلف کیوں نہ ہو، اگر مہمان کے ساتھ کھایا جائے گا تو اس کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو مہمان کے ساتھ وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اچھا، وہ ایک دن مہمان ڈھونڈنے نکلے تو ایک بوڑھا شخص ملا تو اسے اپنے ساتھ گھر میں لے آئے، بٹھایا دسترخوان پہ۔ جب کھانے کا وقت آیا تو کہا کہ اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کا نام نہیں لوں گا، میں تو بتوں کا پجاری ہوں، بتوں کو پوجنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیرے ساتھ میرا تعلق کوئی کاروباری، کوئی ذاتی، کوئی اور تو ہے نہیں، میں رب کے لیے ہی تو تجھے کھلا رہا ہوں، اور اگر تو رب کا نام ہی نہیں لے گا تو پھر میرا تیرا رشتہ کیا باقی بچتا ہے؟ اس نے کہا میں چند لقموں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمت کو۔ اس نے اپنے انداز میں ایک بات کی تھی کہ وفاداری بڑی چیز ہوتی ہے، تو اس نے بتوں سے وفاداری کا بھرم رکھا۔ اس نے کہا کہ میں چند لقموں کے لیے جو ہے وہ تیرے رب کا نام لوں اور اپنے معبودان کا نام چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج تو لوگ چائے کی پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں، کیا آج ممبر و محراب فروخت نہیں ہو رہے؟ لیکن اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں چند لقموں کے لیے، چند ٹکڑوں کے لیے میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو اگر بتوں کے ساتھ اتنی محبت رکھتا ہے تو پھر میں بھی رب کے نام کے علاوہ تجھے دینے پہ آمادہ نہیں ہوں۔ وہ دسترخوان سے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، رب کا سلام دیا۔ اے ابراہیم، رب سلام دیتا ہے اور فرماتا ہے تو نے آج میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ یا اللہ، وہ تیرا بندہ تھا، اس کو تو تیرا نام لینا بھی گوارا نہیں تھا۔ کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یا اللہ 80 سال کے قریب ہوگی۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا میں اس کو رزق دے رہا ہوں، تو ایک دن نہیں کھلا سکا؟ اب ابراہیم علیہ السلام اس کو ڈھونڈنے نکلے۔ وہ کسی پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا، دور سے آواز دی او میاں آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا تم تو بڑے سخت لہجے میں، رویے میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا کہ اسی رب کا پیغام آیا ہے کہ مجھے اتنا عرصہ ہوا اسے کھلاتے ہوئے، وہ مجھے نہیں بھی مانتا تھا، پھر بھی میں اس کی ضروریات کو پورا کرتا رہا ہوں، اور تم ایک دن نہیں دے سکے؟ تو آؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کہا تے رب کا نام نہیں لوں گا، کہا نہ لینا۔ کہا اتنی تبدیلی؟ کہا اسی رب کا سندیش آیا ہے، اسی رب کا پیغام آیا ہے۔ کہا پھر کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے اپنے رب کا مجھے غلام بنا لے۔ تو کوئی مانے اس کو بھی دیتا ہے، کوئی نہ مانے اس کو بھی دیتا ہے، بلکہ دنیا کے اوپر کافروں کو زیادہ دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اہل ایمان کی دلجوئی کا لحاظ نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوں، لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو مار ہی دیا ہے،
और इकबाल ने कहा था ना कि काफिर को दिए हूरो कसूर और मोमिन के लिए फकत वादा हूर। तो इसलिए इनकी दिलजोई है, वरना काफिरों को इतना दूर, चूंकि उनका हिस्सा आखिरत में नहीं है, उनका हिस्सा सिर्फ दुनिया है। दुनिया पे ऐश करें, दुनिया पे ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारे, दुनिया ही दुनिया, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और मोमिन का आखिरत में हिस्सा है। और दुनिया के ऊपर जो तकलीफें आती हैं, उन तकलीफों का बदला उसको क़यामत के दिन दिया जाएगा। बल्कि सही हदीस में आता है कि जब अहले बला को उन पर आने वाली मुसीबतों का सिला दिया जाएगा तो लोग आरज़ू करेंगे काश हमारे बदन को लोहे की कैंचियों से काट दिया होता और दुनिया के ऊपर हमें भी तकलीफें, अजियतें, आलामों मसाइब आए होते। तो मोमिन जब अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी तकलीफ को खद्दा पेशानी के साथ कबूल करता है और उस पे राजी रहता है और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ता, वाबेला नहीं बचाता, जजा फजा नहीं करता, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए अजर रखा है। बल्कि रसूल करीम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के पांव में जो कांटा चुभे तो अल्लाह उसका भी मोमिन को कयामत के दिन अजर अता फरमाए। तो मोमिन की जिंदगी जो है वो बड़ी खूबसूरत जिंदगी है। तो दुनिया के ऊपर जो उसे मानता है अल्लाह उसे भी अता करता है, जो उसका इनकार करता है अल्लाह उसे भी अता करता है। इसलिए कि उसकी शान है कि वो रब है और वो सबका लिहाज करता है और सबकी जरूरियात को पूरा करता है। फिर हर शख्स की जरूरियात अलग अलग है, मेरी जरूरत अलग है, आपकी कोई और जरूरत होगी, और सबकी जरूरत का उसने लिहाज रखा हुआ है। फिर बहाइम की, चौपायों की, हशरातुल अर्ज़ की, परिंदों की मुख्तलिफ जरूरियात है। उड़ने वालों परिंदों की जरूरियात अलग है, पानी के जानवरों की जरूरियात अलग है, इस तरह हशरातुल अर्ज़ की जरूरियात अलग हैं और दरिंदों की जरूरियात अलग है। यहाँ तो हम एक आध किलो गोश्त हो तो घर के सारे अफराद उससे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन शेर को और चीते को जो है वो मनों के हिसाब से रोजाना चाहिए, रब उनको रोजाना फराहम करता है। ये पंसारी के पास जाएं, अगर आपको डॉक्टर या हकीम लिख दे कि ये आपको खालिस सुच्चे मोती चाहिए, उसकी कोई चीज आपको बना के देंगे तो आप हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं, फिर भी बात का एतमाद नहीं होता कि ये बिल्कुल एक नंबर है या दो नंबर। तो रत्ती माशी और तोलों के अंदर आप उनको खरीदते हैं और वो भी आपको गुमान होता है कि पता नहीं खालिस है या ना खालिस। लेकिन दुनिया के ऊपर लाखों करोड़ों परिंदे पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं, हंस, और वो खाता ही सुच्चे मोती है। सुबह को भी, शाम को भी, दोपहर को भी अल्लाह सबको पेट भर के खाने के लिए अता फरमाता है। तो जिसकी जो जरूरत है वो रब है, उस जरूरत को पूरा करता है। तो हम अगर अल्लाह ताला को रब मान लें हकीकी मानों के अंदर, तो हमारी जिंदगी की परेशानियां, हमारी जिंदगी के दुख मिट जाते हैं। मुसीबतें उस वक्त आती हैं और उस वक्त परेशानी लगी रहती है, धड़का लगा रहता है कि जब इंसान जो है वो समझता है कि मैं ही जो है वो कुछ करने वाला हूँ। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाली, भीगने वाली कोई चीज नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़ुम्मा-ए करम पे न हो। तो जब इंसान इस अकीदे को अपनी रूह में, अपने बातन में उतार लेता है तो फिर उसकी जिंदगी सौखी हो जाती है कि वो मेरा खालिक भी है और वो मेरा रब भी है। और ये यकीन इंसान की जिंदगी के अंदर एतमाद, रोशनियां और तवक्कुल भर देता है। बल्कि एक हदीस में आया कि जिस तरह तवक्कुल करने का हक है अगर वो तुम अदा करो तो अल्लाह तुम्हें ऐसे रिज़्क़ अता फरमाए जिस तरह परिंदों को अता फरमाता है। वो जब सुबह निकलते हैं तो उनके पेट खाली होते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ से रिज़्क़ मिल रहा है, और जब वो शाम को आते हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है। अगर हम अपने रवैये से, अपने अमल से, अपने अकीदे से वाकई अल्लाह को रब मानते हैं तो फिर कब्र में जब सवाल होगा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, तो फिर कभी भी जवाब देते झिझक महसूस नहीं होगी। बंदा अर्ज करेगा रब्बे अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है और मैं उसी को अपना रब मानता हूँ। मेरी जरूरियात की कफालत भी उसी के ज़ुम्मा-ए करम पे, और मेरा तयक्कुन, मेरा यकीन कि वो मेरा रब है। ये पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल कब्र में होगा और वो ये होगा कि माँ दीनों का, तेरा दीन कौन सा है। मुख्तलिफ अदियान दुनिया के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन इस्लाम के बाद अब किसी और दीन को कबूल नहीं किया जाएगा। इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इस्लाम के अलावा किसी और दीन को कबूल नहीं करेगा। तो ये अगर मैं अपने अमल से, अपने रवैये से, अपने तर्ज जिंदगी से, अपने अंदाज़े मुआशरत से
इस्लाम को अपने ऊपर गालिब कर लिया, तो फिर कब्र में जवाब देते हुए कोई झिझक महसूस नहीं होगी। बंदा अर्ज करेगा कि दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा तर्ज जिंदगी, मेरा अंदाज मुआशरत, मेरा सभी कुछ इस्लाम की मुताबिकत में था और मैं इसी को अपना दीन मानता हूँ। सिर्फ जुबान से नहीं, अपने रवैये से भी, अपने तर्ज जिंदगी से भी, अपने अंदाज मुआशरत से भी। तो ये जो हम इस्लाम के दायरे में दाखिल होते हैं और हम अपने दीन को इस्लाम करार देते हैं, तो दीन इंसान की जिंदगी के तमाम शोबों पर हावी होता है और उसका तर्ज जिंदगी, उसका अंदाज मुआशरत उसकी मुताबिकत में होना चाहिए। तो कब्र में ये सवाल पूछा जाएगा कि तेरा दीन क्या है, बावजूद कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू को पता है कि इसका दीन क्या था, अल्लाह को पता है कि ये किसको रब मानता था, लेकिन कब्र में ये सारा सिलसिला होगा। और सही हदीस के अंदर इन सवालों का तज़किरा आया है कि ये सवाल पूछे जाएंगे कि तेरा दीन क्या है। अब उसने अगर अपना तर्ज जिंदगी, अपना अंदाज मुआशरत इस्लाम की मुताबिकत में रखा होगा और दीन को उसने दीन समझा होगा, इस्लाम को ही अपना दीन, अमलन रवैयतन हर खुशी गमी के मौके पे उसने इस्लाम को ही तरजीह दी होगी, तो फिर उसको कोई झिझक नहीं होगी जवाब देते हुए कि मेरा दीन इस्लाम है। मेरे शब रोज, मेरी जिंदगी के नशीबो फराज, मेरी जिंदगी की हर गोशा जो है वो इस्लाम की मुताबिकत में गुजरता था, तो फिर वो सीधा सीधा जवाब देगा दीनी अल इस्लाम। इसलिए हमें इस सवाल की तैयारी भी करनी चाहिए कि हमारी निजी जिंदगी हो या हमारी इज्तिमाई जिंदगी हो, हमारी घरेलू जिंदगी हो या हमारी मुआशरती जिंदगी हो, हमारी जाती जिंदगी हो या हमारी सियासी जिंदगी हो, हमारी जिस तरह की भी जिंदगी के जो भी शोबा जाता है, सब में हम दीन को गालिब करें। हम सिर्फ मुसल्ले के मुसलमान ना बने कि 5 नमाजें पढ़ ली और हम कहते हैं मुसलमान है, रोजे रख लिए, तरावी पढ़ ली और हमने जो है वो ज़कात दे दी और हज कर लिया, तो इससे हम मुतमईन हो गए कि हम मुसलमान हैं। इस्लाम एक मुकम्मल और अकमल और कामिल ज़ाब्ता हयात है, अपने मानने वालों को जिंदगी गुजारने का पूरा उसलूब और मुकम्मल कामिल रहनुमाई देता है। हमने हमसायों के साथ सलूक कैसे करना है ये हमें इस्लाम बताता है, हमने बीवी के साथ सलूक क्या करना है ये हमें इस्लाम बताता है, औलाद की तरबियत कैसे करनी है इस्लाम की वाज़ेह तालीमात है, हमने सफर करना है तो अंदाजे सफर क्या होना चाहिए इस्लाम ने हमें बताया, कारोबार करना है तो हम जो है वो क्या कारोबार को मार्केट से सीखेंगे या अल्लाह उसके रसूल से सीखेंगे, तो हमें अल्लाह उसके रसूल ने वाज़ेह दो टोक और सीधे सीधे अहकाम दिए हैं कि तुम जब कारोबार करो तो तुम जो है वो इस अंदाज के साथ कारोबार करो, कम नहीं तोलना, कम नहीं नापना, झूठी कसम नहीं खानी, सूद नहीं लेना, तो ये सारी चीजें मिलावट नहीं करना, एक एक चीज जो है वो इस्लाम ने हमें फराहम की हुई है। तो पूरा दीन जो है जब हम इख्तियार करेंगे, हमारे रवैये, हमारा तर्ज जिंदगी, हमारा अंदाज़ मुआशरत जब दीन इस्लाम के मुताबिक होगा तो कब्र में सवाल का जवाब देना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। और अगर हमारा तर्ज जिंदगी कुछ और तरह का होगा तो क्या सिर्फ ये कह दे कि हम मुसलमान हैं, ये तो फिर एक काफिर भी कह सकता है कि मेरा दीन इस्लाम है, एक मुनाफिक भी कह सकता है कि मेरा दीन इस्लाम है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो हमारी कैफियत कल्ब होगी कब्र में उसका जवाब उसकी मुताबिकत में आएगा, वहां ये दुनिया के मामले या दुनिया की याददाश्तें नहीं होगी, वहां कैफियत कल्ब के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। ये काफिर जवाब नहीं दे सकेगा कि मेरा रब अल्लाह है, क्योंकि वो अमल से, रवैये से अब उसको अपना रब नहीं मानता है, तो हकीकतन तो उसका रब अल्लाह है, लेकिन वो ये जवाब नहीं दे पाएगा। इसी तरह जो शख्स अपने तर्ज जिंदगी के अंदर इस्लाम को दाखिल नहीं कर चुका है और इस्लाम को उसने अपना हादी रहनुमा नहीं बनाया है, तो वो कब्र में सवाल का जवाब कैसे दे सकेगा कि मेरा दीन इस्लाम है, क्योंकि उसका रवैया, उसका तर्ज जिंदगी और उसका अंदाज मुआशरत ऐसा नहीं रहा होगा। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के शब रोज को इस्लामी तालीमात के सांचे में मुकम्मल और कामिल तौर पर ढालना होगा, ताकि जब कब्र में सवाल हो तो हम जवाब दे सकें कि हमारा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल जिस पे फैसला हो जाएगा और उसके बाद कब्र में या जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा या जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाएगी, वो सवाल तीसरा क्या होगा, और वो सवाल भी अकीदे का है। बल्कि बुखारी शरीफ की एक रिवायत के मुताबिक 3 सवाल नहीं होंगे, एक ही सवाल होगा और वो ये तीसरा सवाल होगा। फरिश्ते फिर पूछेंगे हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा दूध से
और कब्र के दरमियान से पर्दे हटा दिए जाएंगे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने होंगे और फरिश्ता हुजूर की तरफ इशारा करके कहेगा मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इनके बारे में जिंदगी में क्या कहा करता था। यहाँ ये नहीं है कि तूने क्या कहा था या अब क्या कहता है। जब मुजारे के ऊपर काना या जो है वो काना के मुश्तक्कात दाखिल हों तो फिर वो माजी इस्तिमरारी का जो है वो माना देता है। तो मा कुन्त तक़ूल का माना यह है कि तू क्या कहा करता था, तेरा लहजा क्या था, तेरी जुबान क्या थी, इनके बारे में तेरी राय क्या थी, तू क्या बोला करता था, क्या कहा करता था। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने होंगे और ये सवाल पूछा जाएगा। अब अबू जहल से पूछा जाएगा मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, तो वो कहेगा है हाथ ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता ये है कौन। अबू लहब से पूछा जाएगा, वो कहेगा है हाथ ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता ये कौन है। अच्छा, जानता नहीं तो पत्थर किसको मारता था, जानता नहीं तो गड़े किसकी राहों में खदवाता था, जानता नहीं तो ओजरियां किसके ऊपर डलवाया करता था। आंखें फाड़ फाड़ के तो सारी जिंदगी देखता रहा, लेकिन आज अबू जहल कब्र में उतरा, हुजूर की सूरत नूरानी सामने है और पूछा गया कि ये कौन है, ये नूरानी चेहरे वाले कौन है। तो अबू जहल कहता है हाय अफसोस मैं नहीं जानता ये कौन है। अच्छा, जानता नहीं तो फिर पत्थर किसको मारता था। अल्लाह अकबर। और 14 सदियां गुजरने के बाद एक मोमिन लहद में उतरता है और पर्दे हटा दिए जाते हैं और मुनकर नकीर सवाल करते हैं आमिर चीमा बता ये कौन है। वो कहता है पीछे हटो, पहले पाए नाज को बोसा तो कर देते थे, मैं तो मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, ये तो मेरे वक्त जागे कि वो मेरी कब्र में आए। वो किसी शायर ने कहा ना कि आए वो मेरे मजार पे घूंघट उतार के, आए वो मेरे मजार पे घूंघट उतार के, मुझसे तो नसीब बच्चे हुए मेरे मजार के, ये तो वक्त समझ गए कि वो मेरी कब्र में आए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा लिखते हैं कि जब से ये सुना है कि कब्र में हुजूर आएंगे, पता नहीं मौत कहाँ मर गई है, जी चाहता है जिंदा ही कब्र में चले जाए। तो वो कहेगा पहले मुझे पाए नाज को बोसा तो कर लेने दो, मैं तो जिंदगी के बारे में इंतजार इनका करता रहा और इनके बारे में पूछ रहे हो ये कौन है। सारी जिंदगी पीर मेहर अली शाह नक्शा बताते रहे, वो कि चंद बदर शाह शानी है, मत्थे चमक दी लाट नौरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मकबू रखी हैं मद भरियां। तो वो फौरन जवाब देता है ये तो वही मेरे आका और मौला है जिनके लिए सारी जिंदगी तड़पता रहा और इनकी ज़ियारत की आरज़ुएं और तमन्नाएं करता रहा। अच्छा, अबू जहल सारी जिंदगी देखता रहा तो वो तो जवाब नहीं दे पाएगा। वो कहता हाय अफसोस मैं नहीं पहचानता ये कौन है, हाथ ला अदरी, मुझे नहीं पता। और 14 सदियां गुजरने के बाद एक मोमिन लहद में उतरता है तो वो फौरन कहता है ये तो वही है जिनके लिए जिंदगी गुजार आया। तो जिसने देखा था वो पहचान नहीं सकता और सदियों बाद जो दुनिया के ऊपर आया वो फौरन पहचान भी रहा है और पाए नाज को गुस्से भी कर रहा है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? तो इसका जवाब अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा ने दिया। वो कहते हैं कब्र में ये जो आंखें हैं इनमें तो मट्टी पड़ी होगी, ये तो बंद होगी, दिल की आंखें खुली हो। अबू जहल ने इन आंखों से देखा था, ये आंखें तो खुली नहीं है, तो इनसे वो कैसे पहचानेगा? और दिल की आंखों ने हुजूर को देखा ही नहीं था। और ये सदियों गुजरने के बाद जो मोमिन लहद में उतरता है उसकी गो इन आंखों ने नहीं देखा था, लेकिन दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफा, मोमिन के दिल के डेरे के अंदर मोमिन के दिल में हुजूर ही बसते हैं, इसलिए उसकी आंखों ने, दिल की आंखों ने हुजूर को देखा और पहचान लिया। इसलिए कि दिल की आंखों ने हुजूर पहले भी देखे हुए थे और दिल आरजू में मचलता रहा, इसलिए दिल को पहचानने में देर नहीं लगी। तो वहां ये आंख भी पहचानेगी, ये आंख पहचानेगी। इसलिए इकबाल ने दूसरे मुकाम पे कहा दिले बीना बिका तलब खुदा से, कि आंख का दूर दिल का दूर नहीं। आंख का दूर और है, दिल का दूर और है। तो अगर कोई शख्स दुनिया के ऊपर दिल के दूर से बेबहरा रहा, कयामत के दिन ये आंखें उसे फायदा नहीं देगी। बल्कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में एक मुकाम पे फरमाया मन काना फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला, जो इस दुनिया में अंधा रहा कल कयामत के दिन भी नाबीना उठाया जाए। इससे इन आंखों की बेदूरी कतन मुराद नहीं, किसी मुफस्सिर ने नहीं लिखा, बल्कि वो तो वाज़े हदीस में आता है जो दुनिया में इन दो महबूब चीजों से आजमाया गया, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसे सिला अता फरमाएगा। ये जो दुनिया के ऊपर नाबीना होते हैं, नाबीना हो जाते हैं या पैदाइशी नाबीना होते हैं, तो ये दुनिया की लज्जतों से और दुनिया के नफों से लुत्फ अंदोज नहीं हो पाते। ये बहुत बड़ी आजमाइश है, जहान अंधेर होता है उनके लिए, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह ताला इसका बेहतर सिला उनको अता फरमाएगा
जो दो इन महबूब चीजों से आजमाया गया। तो अगर वो दुनिया पे अंधा था और हकीकी तौर पे, और कयामत के दिन भी अंधा उठाया जाएगा, ये तो फिर मुनासिब नहीं होगा। तो ये जो कुरान ने कहा जो दुनिया में अंधा रहा वो कयामत में भी अंधा उठाया जाएगा, तो उससे इन आंखों की बेनूरी कतई मुराद नहीं है, उससे दिल की बेनूरी मुराद है। तो दिल अगर बीना हुआ, दिल अगर रोशन हुआ, तो फिर कब्र के अंदर भी दिल दे दीवे दी रोशनाई जावे बिच जमीना, तो फिर वो मार्फते रसूल का सबब होगा दिल का उजाला। और फिर हशर के अंदर भी जो है वो दिल की आंखें रोशन होंगी। तो जिसने अपने कल्ब को दूरे मार्फत से, दूरे ईमान से और दूरे मोहब्बत से मुनव्वर नहीं किया है, तो वो कब्र के अंदर, हशर के अंदर नाबीना ही उठाया जाएगा। और ये कुरान की सरी नस है। तो अब अबू जहल ने इन आंखों से देखा है, लेकिन जब सवाल होता है बताओ ये कौन है, तो वो कहते हैं हाथ ला अदरी, अफसोस मैं नहीं जानता। और सदियां गुजरने के बाद एक मोमिन लहद में उतरता है, ज़ाहिरी मुलाकात भी नहीं है, जब उससे पूछा जाता है ये कौन है, तो वो कहता हुआ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो वही आका है जिनके लिए सारी जिंदगी, जिनके तज़किरों की खुशबू सूंघता रहा हूँ, तो मुझे तो जो है वो इनके पायनाज़ को बोसा कर देने दो। तो बताओ, उसके दिल की आंखों ने हुजूर की मार्फत हासिल की और हुजूर को पहचान लिया। तो दिले बीना भी कर तलब खुदा से कि आंख का दूर दिल का दूर नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जब सवाल होगा, अगर इस सवाल का जवाब नहीं आया तो फिर जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, और अगर इस सवाल का जवाब आया तो फिर जन्नत के दरवाजे कुशादा कर दिए जाएंगे और जन्नत की ठंडी हवाएं उसकी कब्र में आ जाएंगी। बल्कि हदीस में आता है, उसे कहा जाएगा कि नम कनो मतिल उरूस, ऐसे सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है। और वहां से लेकर के हशर तक का सफर जो है उसके लिए बहुत लंबा सफर नहीं होगा, वो ऐसे होगा कि जो है एक खूबरू के गले से हार गिरेगा और वो मोती टूट के गिर जाएंगे और वो उसको चुनने में मसरूफ हो जाएगा। अभी सारे मोती चुन नहीं पाएगा कि क़यामत आ जाएगी। ये मोमिन के लिए अल्लाह ने आसानी रखी, 50,000 साल का दिन होगा यौम महशर, लेकिन जो मोमिन होगा उसके लिए हशर का इतना बड़ा दिन ऐसे होगा जितना असर का वक्त होता है, तो इतने थोड़े वक्त में उसके लिए गुजर जाएगा। तो ये 3 सवाल कब्र में पूछे जाने हैं, हर शख्स से पूछे जाने हैं, मोमिन से भी पूछे जाने हैं और काफिर से भी और मुनाफिक